अल्लाह ताला का शुक्र है, एक बार फिर हमें रमजानुल मुबारक नसीब किया। शुक्र है उस बात का। उम्मीद है कि रमजानुल मुबारक हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। Assalamu alaikum. Happy Ramadan to all. I want to tell you the importance of Ramadan. Ramadan is the holiest month in Islam, observed by Muslims around the world as a time of spiritual reflection, self discipline, and devotion. It is the month in which the Quran was revealed, making it deeply sacred. During this month, Muslims fast from dawn to sunset, refraining from food and drink to purify the soul, strengthen faith, and develop self control. Fasting is not about just staying hungry, it is about building patience, gratitude, and compassion for others, especially those who are less fortunate. रमज़ान इस्लाम का सबसे मुक़द्दस महीना है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान रूहानी फ़िक्र, खुद पर काबू और इबादत के साथ गुजारते हैं। ये वही महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुई, इसलिए इसकी अहमियत बहुत गहरी है। इस महीने में मुसलमान सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं, खाने पीने से परहेज़ करते हुए अपनी रूह को पाक करने, ईमान को मजबूत बनाने और सब्र हासिल करने की कोशिश करते हैं। रोज़ा सिर्फ भूख बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि शुक्र, रहमत और गरीबों के लिए एहसास पैदा करने का ज़रिया है। Why do we fast for the whole month of Ramadan? Taqwa, consciousness of Allah. Fasting helps develop taqwa, which means being conscious of Allah and feeling His presence in our lives. When a person controls hunger and thirst for His sake, the heart becomes softer and fills with gratitude and patience. रोज़ा इंसान को अपने रब के करीब करता है। जब बंदा भूख और प्यास बर्दाश्त करता है तो उसका दिल नरम होता है और उसमें शुक्र और सब्र पैदा होता है। Sabr and self-control. From dawn to sunset, Muslims avoid food and drink. This is not only a physical test but also a lesson in self-control. It teaches a person to manage anger, habits and desires. ये सिर्फ जिस्म का इम्तिहान नहीं बल्कि नफ्स पर कंट्रोल का दर्स है। इंसान अपनी आदतों और गुस्से पर काबू पाना सीखता है। Feeling the pain of the poor. When we experience hunger, we understand the struggles of those who sleep hungry every day. Fasting builds empathy and encourages charity and kindness. जब हमें भूख लगती है तब हम उन लोगों का दर्द महसूस करते हैं जो रोज़ भूखे सोते हैं। इससे इंसानियत और मदद का जज्बा बढ़ता है। Spiritual purification. Ramadan is not just a physical detox but also a spiritual cleanse. People increase their prayers, read the Quran, make dua and seek forgiveness for their mistakes. रमज़ान सिर्फ जिस्म का डिटॉक्स नहीं, रूह का भी डिटॉक्स है। लोग ज़्यादा इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और अपनी गलतियों से तौबा करते हैं। Unity of Ummah. Muslims around the world fast in the same month and break their fast at the same time. This creates a beautiful sense of unity and brotherhood. दुनिया भर के मुसलमान एक ही महीने में रोज़ा रखते हैं और एक ही वक्त इफ्तार करते हैं। ये एकता और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल है। Ramadan teaches us that life is not only about eating and drinking but about character, patience, gratitude and humanity. रोज़ा हमें बेहतर इंसान बनाने का सफ़र है जो पूरे साल तक हमारे रवैये में नज़र आना चाहिए। We had a program on multilingual languages and Ganga Jamuna Tehzeeb, so I arranged an iftar party for all the members who attended the Kavi Sammelan. Before leaving for the event, I completed all the preparations at home, frying fresh bhajiyas and pakoras, preparing chole chaat and dahi bade, and arranging juices and dates along with the juices. Once everything was ready, I carefully packed every item neatly so it could be taken safely to the venue at Arya Kanya Pathshala. I wanted every dish to remain fresh and perfect for serving at the program. प्रोग्राम पर निकलने से पहले मैंने घर पर सारी तैयारियां मुकम्मल की। ताज़े भजिया और पकोड़े तले, छोटे छोले चाट और दही बड़े बनाए, जूस और खजूर की तैयारी की। फिर हर चीज़ को एहतियात से पैक किया ताकि आर्य कन्या पाठशाला में होने वाले इस प्रोग्राम तक सब महफूज और ताज़ा पहुंच सके। As I was arranging the iftar for everyone, I gently explained that after we open our fast with dates, we offer our Maghrib prayer to thank Allah for giving us strength throughout the day. After a short rest, we pray Isha followed by Taraweeh.
a special night prayer in Ramadan. Taraweeh is a beautiful prayer where long portions of are recited, allowing us to reflect deeply on its meaning. It is highly important for men to pray in congregation, while for women it is optional but very rewarding. I shared how these prayers complete our day of fasting and make Ramadan not just about hunger but about spiritual growth and closeness to Allah. जब मैं इफ्तारी सजा रही थी, मैंने मेहमानों को प्यार से बताया कि हम खजूर से रोज़ा खोलने के बाद मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं ताकि अल्लाह का शुक्र अदा कर सके जिसने हमें पूरा दिन सब्र की ताकत दी। थोड़ी देर आराम के बाद इशा की नमाज़ होते ही और फिर तरावी पढ़ी जाती है। तरावी रमज़ान के ख़ास रात की नमाज है जिसमें कुरान पाक की तिलावत की जाती है और इंसान उसके पैगाम पर गौर करता है। मैंने उन्हें बताया कि ये इबादत हमारे रोज़े को मुकम्मल करती है और रमज़ान को सिर्फ भूख का महीना नहीं बल्कि रूहानी तरक्की का सफ़र बना देती है। After completing the blessed month of Ramadan, Muslims celebrate Eid al-Fitr with joy and gratitude. It is a day of thanksgiving to Allah for giving strength to fast the entire month. The day begins with a special Eid prayer, wearing new or clean clothes, giving charity zakat al-fitr to the needy and sharing sweets and meals with family, friends and neighbors. Eid is not just a celebration, it is a reward for patience, self-discipline and spiritual growth throughout Ramadan. पूरे रमज़ान मुकम्मल करने के बाद मुसलमान ईद उल फित्र खुशी और शुक्र के साथ मनाते हैं। ये दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने का होता है कि इससे उसने हमें पूरे महीने रोज़ा रखने की ताकत दी। सुबह ख़ास ईद की नमाज अदा की जाती है, नए या साफ़ कपड़े पहने जाते हैं और ज़कातुल फ़ित्र देकर गरीबों को भी खुशी में शामिल किया जाता है। ईद सिर्फ जश्न नहीं बल्कि सब्र, इबादत और रूहानी तरक्की का इनाम है। My ghazal, I want to tell you, my topic is One Dastarkhan, One Heart, a celebration of Ganga Jamuni harmony. मंदिर की घंटी मस्जिद की आज़ान साथ रही, मंदिर की घंटी मस्जिद की आज़ान साथ रही, इफ्तार की शाम में दोनों की पहचान साथ रही, इफ्तार की शाम में दोनों की पहचान साथ रही। एक ही दस्तरखान पे जब रोज़ा खुला मिलकर, एक ही दस्तरखान पर रोज़ा खुला मिलकर, गंगा जमुनी तहज़ीब की मुस्कान साथ रही, गंगा जमुनी तहज़ीब की मुस्कान साथ रही। The temple bell and the mosque call rang as one that night. The temple bell and the mosque call rang as one that night. On the evening of iftar, both hearts shone bright. On the evening of iftar, both hearts shone bright. At a single table together they shared the first bite. At a single table they shared the first bite. Ganga Jamuni culture glowed in harmony and light. Ganga Jamuni culture glowed in harmony and light. While the event was going on, I carefully arranged each dish one by one, making sure everything was ready for iftar at the right time. From dates to fried snacks and refreshing drinks, every item was placed with attention and care. I felt truly happy and proud to show everyone how we Muslims open our fast, beginning with gratitude, sharing food with love, and turning a simple meal into a beautiful spiritual moment. मुझे बहुत सुकून और फ़ख्र महसूस हुआ कि मैंने इन्हें दिखा सकूं कि हम मुसलमान किस तरह शुक्र और मोहब्बत के साथ अपना रोज़ा खोलते हैं। रोज़े का दिन क्या निराला होता है, घर से मस्जिद तक उजाला होता है। रोज़े का दिन क्या निराला होता है, घर से मस्जिद तक उजाला होता है। मुमताज को आमंत्रित कर दूं। नमस्कार सभी को। लैंग्वेज काफी लैंग्वेज है, एक जल्दी में लिखी हुई से कविता और हिंदी में थोड़ी बोलती है तो क्षमा करिए। मातृभाषा मानव मन की प्रथम उज्ज्वल पहचान, इसमें गूंजे लोक ध्वनि, इसमें बसता प्राण।
संस्कृति की ये जीवित धारा, स्मृति का अक्षय मूल, इसके जल से सींचे जाते जीवन के सब फूल, अपनी जड़ों से जो कटे भूले निज पहचान, पर चमन में खो बैठे वे संस्कृति का मान, पर जो इसके मान को तज पर भाषा पर जूझ, बिन निज भाषा ज्ञान के रहे मुड़ के मुड़, मुड़ के मुड़। आपका एक नाम ज्ञान वही जो जड़ों से जुड़कर दे ऊंची उड़ान, अपनी धरती से उठे तो छू ले आकाश महान, भाषा से ही चेतन होता जनमन का संचार, इसी से उज्जवल हो उठता भविष्य और व्यवहार। आओ मिलकर प्रण करे रखे इसका मान, निज भाषा के तेज से आलोकित हो संसार, संस्कारों की ज्योति से जागे जन मन जन जन का प्राण, कहती है मुमताज सदा बड़े भाषा का सम्मान, कहती है मुमताज सदा बड़े भाषा की सम्मान। इस मौके पर हमारी चीफ गेस्ट प्रोफेसर अनुपमा विवेक ने ज़ुबानों की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि भाषा सिर्फ अल्फाज का ज़रिया नहीं बल्कि तहज़ीब, विरासत और सोच का आईना होती है। उन्होंने ज़ोर दिया कि जब मुख्तलिफ़ ज़बानें एक मंच पर मिलते हैं तो एक दूसरे को समझने और एकता को मजबूत बनाना आसान हो जाता है। After her inspiring words, a special moment followed when all the poets were honored with garlands. Amid loud applause, each poet was respectfully felicitated as a token of appreciation for their talent and contribution to the event. उनकी प्रेरणादायक बातों के बाद सभी कवियों को वरमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। तालियों की गूंज के दरमियान हर शायर की इज्जत अफजाई की गई जो उनके हुनर और मेहनत की कदर का इजहार था। एक के बाद एक सभी को वरमाला पहनाया गया और बहुत उत्साह से सारे लोग पहन रहे थे और हर कवि को ये मौका मिला है और इतना अच्छा लगा। रमज़ान दूसरा रमज़ान था जहाँ पर मैंने इफ्तार पार्टी दी है इन सभी को ताकि इनको पता चले कि रमज़ान का महीना कैसा होता है और कैसे हमारी इफ्तारी होती है और हम किस तरह से इबादत करते हैं। ये एक पाक महीना है। मुमताज मैडम आइए, ताजमहल की याद बढ़ाइए आपने। I was also honored with a garland, and after all the hard work I had put in, it was truly a moment of great happiness for me. It felt rewarding and special to receive such appreciation in front of everyone. मुझे भी वरमाला पहनाई गई और इतनी मेहनत के बाद ये लम्हा मेरे लिए बेपनाह खुशी का था। सबके सामने इस तरह इज्जत और कदर मिलना मेरे लिए बहुत ख़ास और यादगार पल था। प्रोग्राम के आखिर में श्रुतिकांत भारती ने सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा किया, ख़ास तौर पर उन लोगों का जो अपने कीमती वक्त निकालकर इस महफिल को कामयाब बनाने आए। उनके अल्फाज ने इस खूबसूरत शाम को एक यादगार अंजाम दिया। असली हमने मुमताज को दिया था, तो मुमताज थोड़ा सा अपना समय लेते हुए आई है तो उनको मैं माफ़ कर देता हूँ। और भाजी ने जगह पर संचालन किया। सभी लोग ने बहुत प्रसन्नता की बात है। मीना वादी में हमेशा अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यक्रम करने का आयोजन करता है। आज भी जो मातृभाषा ने कार्यक्रम आयोजित किया, सच बात तो यह है कि जब बच्चे का जन्म होता है और उसको अक्षर ज्ञान या शब्दों का ज्ञान भी कराती है माता ही कराती है और अपनी भाषा में ही कराती है। वो जो ज्ञान मिलता है, वो जो संस्कृति मिलती है उसकी भाषा में, मातृभाषा में, वो ही आगे सबका आभार और आशीष। इसी शब्दों के साथ मैं अपने को यहाँ से विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल सितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय। As soon as the program concluded, it was time for iftar. I personally served each guest one by one, beginning with dates, as that is how we traditionally open our fast. I explained to them that we break our fast with patience and gratitude. This bhajia, pakoda, chole chaat, dahi bade, fresh fruits, orange juices, and drink of love were served. In every bite, there was not just flavor but a message of brotherhood, respect, and understanding one another. For our Hindu guests, it was their first experience of such an iftar. They observed their tradition with curiosity and joy. There were smiles on their faces and a new understanding in their hearts. That evening, the dining spread was no longer just a place for food, it became a living example of the Ganga Jamuni culture. The bond of love between temple and mosque felt stronger in that beautiful moment. It was not just an iftar, it was a story where languages were different but emotions were one, where religions were different but humanity stood above all. जैसे ही प्रोग्राम समाप्त हुआ, इफ्तार का वक्त हो चुका था, मैंने खुद एक एक मेहमान को इफ्तार सर्व की। सबसे पहले खजूर से रोज़ा खोला गया। मैंने उन्हें बताया कि हम इसी तरह रोज़ा खोलते हैं, सब्र और शुक्र के साथ। फिर भजिया, पकोड़े, छोले चाट, दही बड़े, फ्रेश फ्रूट्स, ऑरेंज जूसेस और मोहब्बत का शरबत पेश किया गया। हर निवाले में सिर्फ जायका नहीं बल्कि एक पैगाम था, भाईचारे का, एहतराम का और एक दूसरे को समझने का। हमारे हिंदू मेहमान के लिए ये पहला तजुर्बा था। उन्होंने हैरानी और खुशी के साथ इस रिवायत को महसूस किया। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और दिल में एक नया समझ। उस शाम का दस्तरखान सिर्फ खाने की जगह नहीं रहा, वो गंगा जमुनी तहजीब की जिंदा मिसाल बन गया। मंदिर और मस्जिद के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता है वो उस लम्हे और मजबूत हो गया। ये सिर्फ एक इफ्तार नहीं था, ये एक कहानी थी जहाँ ज़ुबानें अलग थी लेकिन जज्बात एक था, जहाँ मज़हब अलग था लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर थी। रोज़े की बरकत अल्फाजों का नूर साथ था, रोज़े की बरकत अल्फाजों का नूर साथ था। उस शाम हर चेहरे जैसे चांद के पास था, उस शाम हर चेहरा जैसे चांद के पास था। The fast soft grace, the words pure light. The fast soft grace, the words pure light. Each face that eve glowed silver bright. Each face that eve glowed silver bright. मैंने एक गज़ल लिखी है, हिंदू मुस्लिम एकता, मोहब्बत का रोशन सफ़र। वो शाम भी क्या शाम थी, रोशन सा समा था, हर दिल में छुपा जैसे मोहब्बत का दिया था। खजूर की मिठास में जज्बात का रंग था, हर लफ्ज़ में छुप कर भी एक नूर सा बसा था। मंदिर हो के मस्जिद हो सब एक नज़र आए, इंसान से इंसान का रिश्ता ही खुदा था। नफ़रत के अंधेरों का कहीं नामो निशान न था, हर सिमत बस उल्फत का ही पहला फैला हुआ साया था। दस्तरख्वान पे बैठकर जब हाथ मिले सबके, लगता था कि दिल से दिल का रास्ता खुला था। आंखों में चमक थी, दुआओं की रवानी थी, उस शाम हर एक लम्हा रहमत से भरा था। मुमताज़ ने महसूस किया उस लम्हे का जादू, ये सिर्फ इफ्तार नहीं एक ख्वाब जगा था। नूरे रम